Students, today morning you received a video related to the quantum number of part 1 where I have discussed about the quantum number. There are 4 quantum numbers: principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number. I told you how to find out. Say for example, an electron is in third shell. Okay, third shell. Suppose a question is given you like that. Question: find all the possible quantum number of an electron present in थर्ड शेल. ओके, थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका पॉसिबल क्वांटम नंबर्स क्या है. तो देखो, थर्ड शेल, एज आई सेड, शेल नंबर इज थर्ड. जितना शेल पे है वही होगा इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. दैट इज n विल बी हियर 3. ओके, एंड आई सेड फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, l वैल्यू विल बी, l कितना होगा 0 to n minus 1, that is 0 1 2, that is 3 minus 1, that is 2. 0 to n minus 1, I said no, 0 to n minus 1. So 0 1 2, n minus 1 till n minus 1, so 0 1 2. Okay, now if l is equal to 0, then number of m value is equal to twice L plus 1. With this formula, there is 2 into 0 plus 1, that is only one value. If the value is 1, then value is what? Value is 0. Okay, value is what? 0. Clear? Now I said if n is equal to 1, then number of m वैल्यू, m का कितना वैल्यू होगा? You know the same formula, twice L plus 1, that is 2 into 1 plus 1, that is you are getting 3. If 3, then values are, कौन कौन सा वैल्यू होगा? Values are -1 0 plus 1. Okay, if ये n लिखा मैंने गलती से ना, हाँ, या ये l होगा, l. ओके, इफ l is equal to 2, then number of m values क्या क्या होगा? twice l plus 1, that is 2 into 2 plus 1, that is 5 values. And already in the earlier videos I told you the values will be what? Values are -2 -1 0 plus 1 plus 2. All right. Now s always remember, s is equal to either plus half or minus half. You do not know whether it is plus or minus. That's why you will say plus minus half. That is either plus half or minus half. It is always s का जो स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू either plus half or minus half, इन दोनों में से एक होगा. It is always common for all. Everybody clear? यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया. Now, यदि आपको पूछा गया, say for example, I ask another question I am giving you. Say, for another question I am going to solve for you. Say,
क्यू क्वेश्चन क्यू लिख दिया मैंने, फाइंड ऑल द पॉसिबल क्वांटम numbers of an electron present in three D orbital. Okay, 3D. Okay, so 3 देख रहे हो, so n will be 3. And earlier video I said if L is equal to 0 then ये कौन सा S, L is equal to 1 then it is P, L is equal to 2 then it is D, L is equal to 3 then it is F. Clear? So now D, so D actually L N 3, तो L का वैल्यू क्या होना चाहिए था, L का वैल्यू 0 1 2. Okay, but here 0 1 you will not take. Why? Because D is already specifically mentioned. Okay, for D so L will be 2 only, so 1 and 2 no need. Now clear? So now number of M values twice L plus 1, that is 2 into 2 plus 1, that is 5. Therefore values are, कौन कौन सा वैल्यू होगा, values are -2 -1 0 +1 +2. Clear? और I like to tell you S is equal to, एक साथ लिख देता हूँ, प्लस माइनस हाफ, प्लस हाफ और माइनस हाफ. Now clear? और प्लस माइनस हाफ rather better it is, you can write like that, plus half or any one will be, both cannot be na, so plus half or minus half. Clear? Now basically I like to tell you something very important here. You know, for P you got Px, Py, Pz. Okay, and D you got 5. Okay, dxy, dyz, dzx, dx2 minus y2, dz2, ये 5 था. और f का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, मैंने एक वीडियो में आपको नाम दिया था, तो बार बार नाम देने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और आपके लिए ये नाम की कोई ज़रूरत नहीं है. तो यह 7, 1 2 3 4 5 6 7 7. ओके, तो आपने देखा L का वैल्यू सी, फिर एक बार बोलता हूँ, S फॉर S के लिए L का वैल्यू 0 है, P के लिए L का वैल्यू 1 है, D के लिए L का वैल्यू 2 है, F के लिए L का वैल्यू 3 है, और L का वैल्यू 0 हो जाए तो M का वैल्यू 1 होता है, और 1 होता है तो कौन सा वैल्यू, ओनली 0. और आपको पता है S के पास कोई फर्दर S क्या है, जस्ट लाइक एन, इट इज़ ए कॉन्टिनेंट एज वेल एज ए कंट्री, ऑस्ट्रेलिया की तरह. क्लियर? तो S के पास फर्दर कोई डिवीज़न नहीं है, P के पास 3 डिवीज़न है. तो L का वैल्यू 1 हो जाए तो ट्वाइस L + 1, दैट इज 2 × 1 + 1, दैट इज 3 वैल्यूज आएगा. तो कौन कौन सा वैल्यू, -1 0 +1. L का वैल्यू 1 2 हो जाए तो कौन कौन सा वैल्यू, कितना वैल्यू, 5 वैल्यू आएगा. 5 वैल्यू आएगा तो कौन कौन सा, -2 -1 0 +1 +2. क्लियर? और यदि L का वैल्यू 3 हो जाए तो 7 वैल्यू आता है. तो 7 वैल्यू आने से कौन कौन सा वैल्यूज,
क्लियर। अब देखो यहाँ मैं जो बोलना चाहता हूँ, P का 1 2 3 और ये 3 के लिए 3 वैल्यू, D का 5, इस 5 के लिए 5 वैल्यू, F का 7 के लिए 7 वैल्यूज। तो क्या सीरियली इसके लिए ये, इसके लिए ये आ जाए, ये इसके लिए ये आ जाए, इसके लिए ये, इसके लिए ये इसके लिए ये, इसके लिए ये वैल्यू, इसके लिए इस तरह है क्या सीरियली लाइक दैट? नो नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। एफ़ के बारे में मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि एफ़ आपकी कोर्स आपकी इख्तियार की बाहर है, दैट्स वाई एफ़ के बारे में छोड़ो, आप पी और डी के बारे में ही देख लो। देखो ये जो पी का 3 वैल्यू है और यहाँ भी 3 वैल्यू, यहाँ भी 5 वैल्यू, यहाँ भी 5 वैल्यू, तो यहाँ किसको क्या दोगे ये हमें प्रॉब्लम नहीं है, बट एक ही प्रॉब्लम हमें है, हमें ये जो जेड के जेड है, इस जेड के लिए 0 का 0 दे दो जेड को, ओके, जेड विल बी 0 पी जेड, और बाकी -1 इसको दोगे ना, -2 -1 इसको दोगे ना, इसको दोगे, ये आपके पास है, किसी को भी कोई दे दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पी जेड जो है वो 0 होगा। ठीक उसी तरह यहाँ भी DZ2 जो है इसके लिए 0 को फिक्स्ड रखो, यू कैनॉट ऑल्टर दिस, ओके, 0 इज़ फॉर DZ2, और बाकी जो 4 वैल्यू है ये किसी को भी आपकी मर्जी, अपनी मर्जी से इन 4 में से किसी को कोई भी एक दे दो, बस नो प्रॉब्लम, डन। सो यदि आपको इस तरह आ जाए, राइट से एक क्वेश्चन देता हूँ, राइट all possible quantum numbers of an electron present in 3DZ2, तो ये 3Z2 हो गया, n के लिए कितना आएगा 3, D तो L का वैल्यू 2, L का वैल्यू 2 हो जाए तो M का 5 वैल्यू होगा, 5 वैल्यू कौन कौन सा आपको पता है, लेकिन ये DZ2 स्पेसिफिक कर लिया, इसीलिए 5 में से कौन सा आएगा, यहाँ M का वैल्यू भी 0, ओके, और S का वैल्यू तो आपने मुझे ने पहले ही बोला था प्लस हाफ और माइनस हाफ, क्लियर हो गया। अब यदि आपको और एक बात बोलूँ मैं कि जैसे मैंने बोला द 300 plus half are the 4 quantum numbers of an electron. 1 2 3 4, ये जो these are the 4 quantum numbers. These are the 4 quantum numbers. Now, if you are asked to find out the orbital in which the electron is present, ये 4 क्वांटम नंबर मैंने दिया आपको, ये 4 क्वांटम नंबर के जरिए आप बोलो कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो मैं आपको बोलता हूँ, देखो 3 मतलब थर्ड, 0 हो गया, मतलब किसके लिए 0, L का वैल्यू 0 होता है तो कौन, S, और M0 कब होता है, S का ही होता है, तो 3S में है, और ये तो भाई हाफ प्लस हाफ या माइनस हाफ होता ही है। इस तरह अनदर क्वांटम नंबर मैं आपको देता हूँ, से फॉर एग्जांपल 5 से फॉर एग्जांपल 2 से 0 माइनस हाफ, ओके नाउ यू सी, तो इट विल बी 5 तो हो गया, 2 मतलब सेकंड L 2 हो जाए तो ये कौन सा है, L2 हो जाए तो ये D है, और 0 आ गया, मतलब ऑर्बिटल जो है D का 5 में से कौन सा आएगा, स्पेसिफिक हो गया Z2, और ये तो भाई सबका है, कॉमन है, प्लस हाफ और माइनस हाफ, क्लियर। सो अनदर वन, सो आई गिव यू 4
1 minus 1 minus half. Now where the electron is present? ये 4 क्वांटम नंबर है. So 4 L1 मतलब P और -1 मतलब Z नहीं होगा. You can write PX or you can write 4P Y भी लिख सकते हो. क्लियर? These or these both में भी द आंसर, बिकॉज -1 जो है ये X के लिए भी हो सकता है, Y के लिए भी हो सकता है, लेकिन 0 हो जाता तो ये कौन हो जाता? P 4P Z हो जाता. क्लियर एवरीवन? सो ये क्वांटम नंबर्स के बारे में. सो एक बात मैं आपको बोल देता हूँ, n कैन नेवर बी इक्वल टू l. कभी n और l कभी एक नहीं होता है. आपने बोल देखा था ना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n l विल बी 0 to n minus 1 वैल्यू, 0 to n minus 1. तो एक कम होगा, ज़्यादा भी हो नहीं पाएगा. l का वैल्यू l कैन नेवर बी इक्वल और n कैन नेवर बी स्मॉलर देन l कभी बड़ा नहीं हो सकता है, कम हो सकता है. ना तो इक्वल होगा ना तो बड़ा होगा. l का वैल्यू कम हो सकता है बिकॉज इट इज़ 1 लेस, 0 to n minus 1. उतना क्लियर हो गया? तो आपको मैं कुछ असाइनमेंट का फोटोकॉपी मैं दे दूंगा, आप वो करके सॉल्व करके मुझे देना. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर. थैंक यू.